Yes. So, good evening, viewers. I don't know how many of you are online right now, but I'm hoping that there are more men watching us today than women. So, should we wait for a bit till more people log in before we start? Great. So, I've got my go ahead. So, Woman with Wings is a platform extraordinaire where women from various walks of life have congregated. We've realized that a woman sure is powerful by herself, but women together create true impact. The power of collaboration instead of competition is the key mantra of Women with Wings. The founding members, Shefali and Vatsala, are childhood friends who have pledged to connect more and more women, to create a level playing ground, to celebrate each other's successes, and to uplift each other when the going gets tough. Like they say, there's sure power in a pack. Well, I'm your host, Sujoyita Ghosh, today, and I've been in corporate HR for almost 23 years now. I've been a 4G kid, so very grateful to the Indian Air Force where I grew up. So the travel genes are super strong. My heart is on the road, really. I'm also a single parent to two kids. Should I not say kids, maybe? So my son is a 21-year-old, and he's not a kid anymore. He's a man, actually, and a 16-year-old girl. To tell you the truth, all these talk shows and hosting shows, appearing on talks, etc., makes me feel really important. But then I still wash my own car, write my own emails, and clean the dishes after dinner. So no big shot there. But as I said earlier, also, I am an eternal optimist. And guess the joy in my name did the magic there. Anyway, today is not about me, and nor is my story important. But I would like to tell you a story. So listen up hard, ladies and gentlemen. I hope you're there too. So there's this lovely girl from a small town in India. Let us call her Nari. She's a great student and wished to study, but the father was a typical man who believed that marriage is the only way thing to do and that women are to be slaves to either their fathers or their husbands and later on their sons. So while Nari was still in second year of graduation, she was married off to a PWD engineer, supposedly educated and cultured. While the in laws were very decent, the husband turned out to be an alcoholic who would physically and sexually abuse her regularly. Nari was in a very, very, very abusive wedding marriage year after year, during which she was forced to have two abortions also by the devil of a husband. Nari's personality had completely changed from a happy, young, carefree, studious kid to a hyperactive, agitated, nervous, destabilized woman. At the end of the eighth year of her marriage, something snapped within, and Nari ran away. She ran back to her parents, hoping to find a safe haven there. Unfortunately, her intensely patriarchal father refused to let her in and sent her packing back to her husband. What followed in the ninth year of her marriage was yet another living hell for her. So at the end of year 9, Nari ran away again. This time, she went not to her family, but to friends in Delhi. Her husband continued to harangue her each day,
on the phone at night, demanding she come back. To add to her fear, her father threatened her of honor killing, and she became mentally unstable and was unable to function normally. It was then that Nari met a lady who showed her the light at the end of the dark tunnel, and she was the one who showed her that life exists beyond where she was. Nari restarted her studies, completed her graduation, and now I'm happy to report she started studying for her UPSC exams. The guiding star also got her to be teaching underprivileged children and began to, which actually in turn helped Nari to stabilize herself mentally. Alongside, she began, as I said, to prepare for her UPSC exams. And I'm really, really happy to report that Nari today has cleared her prelims and is preparing for the mains now. I personally graduated in psychology from Delhi University and dreamt of becoming a clinical psychologist someday. But I never really understood how I would apply the theory of psychology to real life and build a career there as a clinical psychologist. This is a case in point. I would like to introduce you now to our guest today, Dr. Neeru Singh. Namaskar. Good evening. Namaskar, ma'am. Namaskar. Extremely delighted to have you on our show. Thank you. बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम and thank you for coming. Thank you for making time. It's my privilege. It's my honor. Honestly speaking, it's my honor to be hosting you today. Okay, so ladies and gentlemen, our esteemed guest today is Dr. Neeru Singh, a clinical psychologist of repute, the one who has made the likes of Nari, the story I told you about just now, people like girls like Nari to live again. A woman who is surely making a difference to the future of our country and on a larger scale, the world. Dr. Neeru Singh comes with a PhD in clinical psychology from Jamia Millia Islamia, post which she has worked as a research officer in Jamia and has been actively involved in teaching work as a faculty for 11 years there. She's not one to rest, so she pursued multiple Government of India sponsored research projects pertaining to different social aspects through her NGO stream. We'll tell you more about her NGO soon. Dr. Neeru has been actively involved with counseling and providing legal awareness to women from different strata of society. She has over 15 years of experience in counseling, guiding women to find their inner strength. With a personal touch to each client she meets, she has had a fine track record in providing support to women facing different challenges. Presenting to you Dr. Neeru Singh, clinical psychologist. Welcome, ma'am. I'm really honored. Thank you. Thank you so much. आज का हमारा टॉपिक है, थीम है, व्हाट अ वुमन शुड नो अबाउट हर राइट्स. हम लोग जिंदगी में चलते जाते हैं, बट अ लॉट ऑफ अस really don't know which way we are headed. It is people like Dr. Singh who can help us find our way when we are lost. So, ma'am, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ बड़े हुए, आपकी फैमिली के बारे में, कुछ हमें पर्सनल बचपन के दिनों के बारे में एंड आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है एटसेट्रा थोड़ा बताएं. बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. बिहार में बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ. मेरे फादर रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर थे बिहार में और माय मदर इज साइंस ग्रेजुएट, बट शी वाज हाउसवाइफ.
ड्यू टू So फादर से वो लीगल जीन्स भी आ गए आप में. yes. Very और nice. I have two siblings, one elder sister who is post graduation in psychology, and she has had done 10 years of faculty as a teaching in Bihar University, but Okay. for look after of her kids, she has resigned. Okay. Okay. My younger brother is a dairy engineer and he is well settled in Bihar. अच्छा. I very much inspired by my father from very beginning of my life. जब उनके पास क्लाइंट्स आते थे केस की सुनवाई के लिए, वो तैयार करते, तो मैं उनके बगल में बैठ के वो चीजें मतलब बहुत ध्यान से सुनती थी. उसमें मुझे ठीक से लिखना नहीं आता था, लेकिन वो चीजें मेरे माइंड में फीड होते जाती थी. जब मैं 10th के बाद मैं सुबह के 1 घंटे टाइम उनके पास उनके ऑफिस में मैं बैठ के उनको असिस्ट करती थी. कुछ डिक्टेशन हुआ, कुछ बुक्स निकालने हैं लीगल के, वो करके मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप होते गया. और उसी दरमियान मैं केसेस देखती थी कि फीमेल एक्सप्लॉयटेशन के केस आ रहे हैं, डाउरी डेथ है या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, इलिटरेट फैमिली की लेडीज है, वो बोल नहीं पा रही है, उसको मतलब हिम्मत दिया जा रहा है, एक एडवोकेट हिम्मत दे रहे हैं कि तुमको ऐसे बोलना है अगर जज पूछता है या ऐसे वो करना है. तो मैं सोचती थी कि इतना डर क्यों है, फीमेल के अंदर में इतना डर क्यों है, उनको बाहर निकालने के लिए. तो ये चीजें मेरे दिमाग में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मतलब हमेशा हिट करती रही. फिर मैं +2 के बाद मेरा एक शुरू से था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हाँ मेडिकल लाइन जाने का था. हमारे फादर भी फ्री हैंड के होते कि ठीक है तुमको जो भी चूज करना है, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमारे फादर के माइंड में किसी ने सेट किया कि 6 ईयर मेडिकल की पढ़ाई, उसके बाद 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो लाइफ लॉन्ग पढ़ते रह जाएगी, फिर स्टेबिलिटी इसके लाइफ में कब आएगी. हमारे फादर एकदम बोल दिए कि नो, मेडिकल लाइन इज नॉट फॉर यू. फिर एक इको हर्ट हुआ. मैं मतलब 6 मंथ तक कॉलेज नहीं गई कि ह्यूमैनिटीज लेके कौन पढ़ेगा, मुझे नहीं पढ़ना है. फिर ऑल ऑफ सडन एक दिन मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कुछ आर्टिकल पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ दिस वे और दैट वे. राइट. तो फिर मैंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर्स ज्वाइन किया 6 मंथ्स लेट, और ग्रेजुएशन किया. उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया. मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी में. वाओ. देन आफ्टर इन 89 I my post graduation. Then I joined law in Bihar. Okay. उसके बाद मेरी शादी तय हो गई. या हमारे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते थे, तो मुझे दिल्ली आना पड़ा. तो 2 साल मैंने LLB किया, लेकिन 3rd ईयर में मुझे मतलब PhD का नशा चढ़ गया कि PhD करना है, मुझे टाइम नहीं है वहां जाकर देने का, तो वो भी माइनस हो गया. फिर मैं जामिया में फुल टाइम PhD ज्वाइन करा. वहां पे ये शादी के बाद आपने PhD ज्वाइन करी? क्योंकि हमारे इन लॉज फैमिली भी बहुत ही एजुकेटेड हैं. हमारे फादर इन लॉ हमारे मतलब टैलेंट को सुन के बिहार में जनरली लड़की वाले लड़के वाले के दरवाजे पे जाते हैं रिश्ता मांगने. हमारे यहाँ उल्टा हुआ. हमारे फादर इन लॉ आए कि लोग लड़का ढूंढते हैं, मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, मैं आपकी बेटी के हाथ मांगने होते. ऑल ऑफ सडन हमारे फादर के मुंह से निकला कि ये कोई फ्रॉड है. मैंने एक मेंटल सेट बना हुआ था कि कोई लड़का वाला किसी लड़की वाले के नहीं जाता है. मतलब बहुत ब्रॉडनेस नहीं थी. लेकिन जब हमारे फादर ने पता किया तो बोले कि नहीं, मतलब ये लोग एजुकेटेड फैमिली है और इसके एजुकेशन से इंस्पायर होके आ रहे हैं. तो हमारे फादर लोग पहले मुझसे मिले, बोले कि तुमको हमारे घर चलना है, मेरे बेटे से शादी करनी है, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, साथ में जॉब भी करना होगा, PhD भी करना होगा, ये सब सोचो, ये सब मैं करवाऊंगा. तो इसको अदरवाइज नहीं लेना. क्योंकि हमारी मतलब पेरेंट की फैमिली थी बहुत ही हाई फाई, मतलब रॉयल फैमिली टाइप की थी. तो वो देख के उनको लगा कि इस घर की लड़की आके कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. लेकिन ठीक है, आने के बाद 89 में हमारी शादी हुई. तो हमारे हस्बैंड भी इंस्पायर किया कि ठीक है जो करना चाहती हो स्टडी में करो. तो मैंने PhD ज्वाइन किया जामिया में फुल टाइम. उसके बाद से हमारे एक जगह आपके पिताजी आपके इंस्पिरेशन रहे, और आपको ड्राइव करने वाले आपके फादर इन लॉ एंड योर हस्बैंड आफ्टर मैरिज.
How beautiful. Really nice. Lovely to know this. और मेरे हस्बैंड मतलब लगता था कि एक जैसे मैं देखती थी कि पेरेंट्स को ये बुक चाहिए या मैंने स्टडी से रिलेटेड तो प्रायोरिटी देते थे, वैसे मैंने अपने हस्बैंड में भी वो चीज पाया कि मुझे पीएचडी करना है तो प्रायोरिटी हमारे पीएचडी को मिल रहा है, बाकी चीज सेकेंडरी है। तो उससे मुझे और हिम्मत आई, मैं धीरे धीरे मतलब उसमें इन्वॉल्व होती गई। तो मुझे एक इंसिडेंट बता दूं, मैं पीएचडी इनरोल होने के लिए मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता था, टॉपिक देखना और ये वो करना। तो फिरोजशाह रोड पर लाइब्रेरी थी, तो हस्बैंड मेरे को छोड़ने जाते थे, लेने आते थे, मेरी मदर इन लोग साथ रहती थी। बोलती अब इसको दिल्ली रहना है, इसको बस का रूट दिखाओ, ये आए और जाए। एक दिन हस्बैंड बस से लेके गए, बता दिया कि ये बस स्टॉप पर आओगे, यहाँ से बस पकड़ोगे, फिर यहाँ चेंज करना है, यहाँ घर आना है। मैं हाँ हाँ तो बोलती हूँ, लेकिन जब निकली लाइब्रेरी से शाम में तो मैं गलत बस स्टॉप पर खड़ी हो गई, मैं सहादरी चली गई बस से। Oh my God. Oh my मैं 8 बजे रात तक खड़ी रही बस स्टॉप और किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किससे पूछूं कि मुझे साकेत जाना है। मैं साकेत में रहती थी। फिर उस समय मोबाइल का टाइम भी नहीं था। फिर एक पानी वाले से मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि आप, और डर था कि ऑटो से भी नहीं जा सकती हूँ, अकेले हूँ, नई नई आई हूँ, ऑटो से भी नहीं जा सकती हूँ। तो उस दिन मुझे लेसन मिला कि नहीं, वोकल बनना पड़ेगा, यू हैव टू वोकल। यस, तो उसके बाद मुझे जरूरी है। हिम्मत आ गई और फिर जिंदगी चल पड़ी। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जामिया में आप जब पढ़ा रहे थे, आप 11 साल जामिया में लेक्चरशिप में थे, तब उस दौरान आपने अपना एनजीओ भी स्टार्ट किया। हाँ जी। तो ये तो सुपर वुमन वाली बात हो गई, मतलब फुल टाइम लेक्चरशिप, साथ में पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, एंड आई थिंक यू हैव 2 चिल्ड्रन, राइट? यू हैव 2 बॉयज। यस। हाँ, तो बच्चे भी छोटे हुए होंगे तब। हाँ। तब आपने एनजीओ भी कैसे शुरू करा और क्यों करा? रीजन क्या था आपका अपना एनजीओ स्टार्ट करने का उन दिनों में? एक्चुअली बहुत सारे मुद्दों पे मैं जैसे हाथ मसलने वाली बात हो जाती थी कि मैं इस पे कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं, मैं गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं किसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ा सकूं। जनरल पब्लिक की तरह कोई टॉपिक ले लिया, अगर 2-4 बार उस पर लिखा या किसी के सामने गई तो उसकी वैल्यू नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, गवर्नमेंट से ऑथेंटिसिटी मुझे चाहिए, रजिस्टर कराया अपने एनजीओ को। उस समय हमारे हस्बैंड का भी एक था कि तुम्हारे एनजीओ एक रन करो ताकि तुम जॉब सीकर ना बनो, जॉब गिवर बनो। वो बार बार ये बोलते थे। ये तो मेरे वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, राइट? हाँ, वो बैंक में, हाँ वो बैंक में थे। Yeah, so that's amazing. Job giver and not a job seeker. Very nice. Really. तो फिर मैंने एनजीओ रजिस्टर कराया और मेरा टीचिंग से बहुत अटैचमेंट था, तो जामिया छोड़ो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी। Okay. फिर ऑल ऑफ सडन लगा नहीं, मेरी जगह ये नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो फिर मैंने अपना एनजीओ को बहुत सारे वर्क किए एनजीओ में सोशल प्रॉब्लम को लेके। पहले तो बच्चों पे ड्रग डी एडिक्शन, स्कूल के बच्चे जो ड्रग एडिक्ट थे उन पे काम करा। फिर अल्कोहलिज्म से जो फीमेल परेशान होती है, उनके घर की क्या स्थिति होती है, उनका लाइफ स्टाइल कैसे डिस्ट्रॉय। राइट मैम, आप हमें देखिए, आपका एनजीओ स्ट्रीम है, स्ट्रीम का फुल फॉर्म बताएंगे प्लीज? सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्शन मैनेजमेंट। वाओ, which means रिसर्च, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन। तो आपने 3 बड़े एरियाज कवर कर लिए, उसके बेसिस पे एक्शन। फैंटास्टिक, आई थिंक अ बिग हैंड टू मैम। थैंक यू, दैट्स ब्यूटिफुल। सो स्ट्रीम के थ्रू आप काउंसलिंग करती हैं बहुत डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी के विमेन को, राइट? तो आप हमें कोई एक केस या 2 केसेस, कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कोई ऐसा केस हो जो एकदम लोअर मिडिल क्लास स्ट्राटा से जो लेडीज आई हैं, उनके चैलेंजेस कैसे थे? आप थोड़ा बता सकते हैं कोई केस?
जो आपके जैसे मेरे एक लेडी हमारे पास आई थी, वो बहुत ही वो प्रॉब्लम लेके आई थी कि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, मैं रात भर मतलब वॉक करती हूँ। है उसका बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड उसका एक्चुअली मेरी बुटीक वाली है, उसने बोला कि एक लेडी है वो मेडिसिन खाती है फिर भी उसको नींद नहीं आती है, तो आप एक बार उससे बात करो, आप भेज देना मेरे पास उसको। वो आई, वो जैसे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती है वो लेडी, और 3 बच्चे उसके। तो उसने बताया कि मुझे डॉक्टर ने दवा भी दी है, लेकिन दवा खाने के बाद तो वो ट्रैंक्विलाइजर्स दे रखा था डॉक्टर ने, जो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उनसे दिखाते हैं ये लोग, और वो कुछ पुड़िया में मेडिसिन टैबलेट निकाल के पुड़िया बना के उनको दे दिया था। लेकिन बोले थे कि शुरू में 1 आधा दिन नींद आई, लेकिन मुझे नींद नहीं आती, मैं रात भर दिन भर थक जाती हूँ, लेकिन रात भर चक्कर लगाती हूँ आंगन में, मुझे सो नहीं पाती हूँ। तो बहुत कोशिश करा कि इसका कारण क्या है, भूख लगती है, खाना खाते, मतलब बहुत सारी चीजें, घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। फिर मैंने उसको बोला कि कोई पूजा पाठ करते हो? तो हाँ करती हूँ। हमने कब करते हो? जब टाइम मिलता है। तो उसको जस्ट एक सिंपैथी, मतलब एक सिंपैथी शो करने में, कि मेरी बात मानो, तुम 1 वीक तक सुबह उठ के पहला काम करो, वहां के एक अगरबत्ती अपने भगवान का, जिस भगवान को मानते हो उसके सामने जलाओ, 5 मिनट आंख बंद करो और फिर अपने काम पे चले जाओ। 1 हफ्ते के बाद आई, 1 हफ्ते के बाद आई तो थोड़ा उसको मतलब पता नहीं सुकून लगा होगा, कुछ लगा होगा। फिर मैंने बैठा के वही सवाल पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों चिंता करते हो, क्यों सोचते हो, क्या है दिमाग में तुम्हारे? तो फिर वही, नहीं कभी घर का खर्चा, ये वो बहुत सारी चीजें, मतलब बेसिक चीजें मुझे पता नहीं चली थी। मैं जब तक बेसिक कॉज पे नहीं पहुंचती हूँ तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। 3rd सीटिंग में उसने जब आई तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे हरियाली थी, और बोला कि दीदी आपने जो भी बोला था मेरे को कि हाँ गाना सुनो जब टेंशन होए, और सुबह में अगरबत्ती जलाओ, माथा टेको, तो मुझे बहुत राहत मिल रहा है, मैं 1-2 घंटे सो पाती हूँ। फिर मैंने उसको बैठाया अपने पास, उससे पूछा कि आप बता कितनी पुरानी शादी है, हस्बैंड क्या करते हैं? उसके पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। हाँ, फिर उसने बताया कि मैम आप बात कहीं बाहर तो नहीं, तो मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मैंने नहीं, ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, कम से कम अपना दुख तो हल्का कर लो। फिर उसको लगा कि शायद कोई लिसनर है मेरे दुख को, तो उसने अपनी कहानी शुरू करी। उसका हस्बैंड बहुत अल्कोहलिक है, वो रेड़ी चलाता है, उससे कभी रेड़ी का काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो जो भी अर्न करती है इससे, जब पैसे शराब के लिए इकट्ठे तो मार पिटाई करके बच्चों को मारता है, कमरे में बंद करता है, मतलब बहुत। तो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हाँ जी मैम, ये जो केसेस होते हैं इनका तो अनलेस एंड अनटिल द लेडी वांट्स टू गो टू द पुलिस, उसके लिए हाँ, उसके लिए उनको एक हिम्मत देनी पड़ती है अंदर से, उनको एक जो हेजिटेशन है, समाज क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा, ये हर लेडीज में। मैंने कम से कम 10,000 तो नहीं, मतलब विद इन 10,000 मैंने काउंसलिंग करी है, टीनेजर लड़कियों से लेके और 60+ के लेडीज की भी करी है। लेकिन जो इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन वाले लेडी, उनके एक हेजिटेशन होती है अंदर में कि हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे परिवार क्या कहेगा, ये हम तो अकेले हो जाएंगे, जैसा भी है जूता मार रहा है लेकिन कोई सिर पर साया तो है, ये फीलिंग रहती है। ये नहीं कि हाँ सारे बंधन को तोड़ो, मैं सुकून से जी सकती हूँ, ये चीज उनमें नहीं रहती। हाँ मैम, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू, हम लोग को थोड़ा टाइम भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द राइट्स दैट अ वुमन हैज इन टुडेज world in our country, in because women's rights are also linked to a lot of things which are country oriented. So in India, what are the rights that a woman has? अगर आप लिस्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। एक तो वुमेन के जैसे राइट ऑफ इक्वलिटी है, इक्वल राइट होना चाहिए लड़के और लड़कियों में, एजुकेशन वाइज, या उनके चॉइस ऑफ मैरिज होना चाहिए, फोर्सफुल मैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके प्रॉपर्टी, उनके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स है उनके। फोर्थ है अगर वो मैरिज के बाद वो अपने डिसीजन, जॉब करना है नहीं करना है, मुझे 4 घंटे घर हाउस होल्ड वर्क करना या नहीं करना, कोई फोर्सफुली उनको नहीं कर सकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो आवाज उठा सकती हैं। अगर उनके साथ रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, डिसरेस्पेक्ट होता है, तो ये दैट इज द टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस।
अगर सास उनको मतलब उलुल जुलुल लैंग्वेज में बात करती है, या हस्बैंड उनको गाली के मुंह से बात करता है, या मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता, दैट इज अ सच टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। राइट राइट। इसके लिए वो आवाज उठा सकती हैं। कई केसेस में देखे गए हैं कि शादी होकर हस्बैंड ससुराल वाले बोलते कि अब घर में खाना बनाओ, जॉब नहीं करनी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का उनको पूरा अधिकार है। अगर नहीं है, वो जॉब नहीं कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये हस्बैंड और ससुराल वाले का राइट बनता है कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाए। ये राइट उनको गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि जब आपके पास मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की लड़कियां या वाइव्स आती हैं हाँ, आती हैं एज अ क्लाइंट, हाँ। व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे कम विद? मैक्सिमम वही डिस्प्यूट बिटवीन इन लॉज एंड हस्बैंड। ओके। हस्बैंड अगर चाहता भी है कि हाँ हमारी फैमिली लाइफ अच्छे से चले, तो इन लॉज का इंटरफेरेंस रहता है, या वो अर्न करती हैं तो ये उन पे प्रेशर रहता है कि सारे पैसे तनख्वाह मिली नहीं कि मतलब 500 रुपए। बट आप एक बात बताइए, आपने पहला जो केस बताया वो एकदम हाउस होल्ड वर्किंग लेडी के था, राइट? तो हाँ, उस केस में हम सोचते हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग सोचते हैं कि एजुकेटेड women can easily come and talk about their problems and take a decision. Is that true? नो। It is not. So matlab the hesitance to not talk about personal problems in प्रॉब्लम, public यस यस is across strata of society, whether it is a middle class, upper middle class, or a lower class. I mean, EWS society, यस सब में same है. That is human tendency, यस right? human tendency, and this is because of only that the man dominated society of India, Yeah, coming from thousands of years. correct. Right now we tried to change it, but it took time. या मैम एक बात बताइए, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपको हम लोग हाउ कैन अ लेडी, सपोज somebody is watching our show today and wants special help from you, how can somebody contact you? Mail me their Email? problem, with phone number I will contact. ओके, सो आपको ईमेल कर सकते हैं. हाँ, आई थिंक आई विल आस्क, या सो आई हैव आस्क्ड शिफाली टू send us your email ID on the chat so that people can write to you, and yes, उसमें फोन नंबर रहेगा तो आप उनको कॉल बैक कर सकते हैं, yes, yes. राइट? दैट्स वेरी नाइस, दैट्स रियली नाइस. मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे आजकल ऑनर किलिंग का बहुत ज्यादा हम लोग को सुनने में आता है, एंड स्पेशली इन दीज the North Indian states, it is extremely rampant. Yes. So, have you ever had a case where there's been an honor killing other than the case which you told me and I spoke about it in the morning, in the Yes, beginning? I handled one case 2-3 years back, case from Rajasthan. Okay. And how was the mind state of the girl? Actually, this is the Rajasthan were very rigid on their rule and regulation related to daughters, females. Okay. Girl was doing job in Jaipur. She is engineer also. Okay. And she has affair with his colleague. Then she informed her parent, I am going to marry with him. तो पहले तो फादर ने मतलब समाज क्या कहेगा, नाक कटवा दिया, तुमको पढ़ा के गलती किया, मैंने बहुत सारी चीजें हुई. उसके बाद उसको घर में बंद करके रखा. कुछ जब घर बुलाए उसको घर में बंद करके रखा. और ऑल ऑफ सडन एक दिन मतलब अपना पढ़ाई का वो पुलिस के हेल्प से, पुलिस को फोन किया, पुलिस के हेल्प से वो वापस आ गई अपने
वाले प्लेस पे, और इसने कोर्ट में मैरिज कर लिया लड़के से। अच्छा 6 मंथ तक पेरेंट्स ने कोई सूद बूद नहीं ली, इसने इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने मैरिज कर ली। 6 महीने के बाद मामा को भेजा गया, उसके उसकी मदर ने भेजा कि जाके और हम लोग एक फॉर्मल यहाँ पे फंक्शन करके इस मैरिज पे स्टैंप लगाते, तुम बुला के लेके। उसको कन्विंस करके मामा लेके गए हैं, उसका हस्बैंड नहीं जाने दे रहा था। और नेक्स्ट डे मतलब फोन आया कि पापा आने वाले हैं, मामा के घर में पापा आने वाले हैं, सो तैयारियां हो, डेट वगैरह निकल जाए तो मैं बता दूं। उसका तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, 3 दिन तक फोन नहीं आया। वो लड़का परेशान रहा, उसको एड्रेस भी नहीं पता है उसका ननिहाल का, उसके गांव का एड्रेस पता था। वहां गया तो पता चला कि एक लड़की की डेथ हो गई है, बिजली का तार गिर गया था, उसको तो अभी मतलब फ्यूनरल करके आ रहे हैं। वो फ्यूनरल ग्राउंड पे गया है तो मतलब किसी के आंख में आंसू नहीं, उसको मतलब फ्यूनरल हो चुका था। वो लड़का मेंटली इतना डिस्टर्ब था कि उसको काउंसलिंग के लिए उसके फ्रेंड लेके मेरे पास आए। अच्छा, तो ये ऑनर किलिंग की कहानी। दिस इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। आज के जमाने में हम सोचते हैं वी आर इन द 21st century and we are, you know, we've reached the moon, but here we are still stuck in our own. Yes. Extremely sad, really sad, really sad. Ma'am, एक बात बताइए, there's a question which has come from a viewer called Meetu. She has asked, do you even conduct counseling sessions for youngsters to make them aware of subtle ways of mental harassment and domestic violence? Yes, yes. आप करती हैं? आप सेशंस मतलब जैसे स्कूल्स या तो कॉलेजेस में सेशंस कंडक्ट करती हैं आप? स्कूल्स में मैंने किया है, कॉलेजेस में अभी नहीं किया है, स्कूल्स में मैंने किया है। आई थिंक टीनेजर्स जो लड़कियां होती हैं 15 ऑनवर्ड, उनको बहुत जरूरत होती है। ठीक बात, लड़कों को भी जरूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक्चुअली स्कूल इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि तब भी द माइंड इज स्टिल नॉट फिक्स्ड, सो चिल्ड्रन आर स्टिल लर्निंग, imbibing and absorbing. Yes, they are started their life in daydreaming. रियलिटी उनको बतानी जरूरी होती है। हाँ जी, और अभी तो डे ड्रीमिंग और ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज देर इज अ constant thing of the phones and the internet, and there's a world of make believe which is not really there. But yes, children is the real focus, I think. Then we can maybe work at really changing the world. Or ma'am, any other case which we can hear from you about जो काउंसलिंग, जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आई वांट टू आस्क यू वन वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी, मैं क्यों पूछ रही हूँ वो मैं बाद में बोलूंगी, बट पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डू यू चार्ज योर क्लाइंट्स फॉर काउंसलिंग? Yeah, you do, because free of cost is not value. That is exactly why I asked you this question, because a lot of people think that free counseling नहीं कर रहे हैं, ये तो समाज सेवा होनी चाहिए, but समाज सेवा का वैल्यू नहीं काउंट होता है। मैंने बहुत दिन किया, मैं करती हूँ फ्री काउंसलिंग, जैसे डिसेबिलिटीज और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहां पे जाती हूँ, डिसेबल बच्चे जो हैं उनकी करती हूँ मैं फ्री ऑफ काउंसलिंग, उस टाइप के इंस्टीट्यूशन में जाके, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाके मैं फ्री ऑफ। लेकिन जो पर्सनल विजिट करते हैं उनसे मैं चार्ज करती हूँ, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। जो मैंने मेड की कहानी बताई उससे मैं 200 रुपए पर आवर्स ली, 200 रुपए पर आवर्स, आवर्स के हिसाब से हमारे फीस होते हैं। तो उसकी आधी बीमारी खत्म हो गई, मेरे बात करने से आधी बीमारी खत्म हो गई। उसका हेजिटेशन गया, वो पुलिस स्टेशन गई है, पुलिस काउंसलिंग, फीमेल मतलब महिला थाना जाके हस्बैंड को की काउंसलिंग हुई है, मैंने उसको रास्ता दिखाया कि तू एक बार निकल के तो देख। और काउंसलिंग हुई है, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेटन मिला है कि अगर आगे से तुम ऐसा कुछ करते हो तो उसका हस्बैंड भी 100% नहीं 70% सुधर गया, उसकी लाइफ स्मूथ हो गया। ब्रिलियंट, yeah, and it's very important. मैंने इसी कारण से आपसे पूछा about charges, because anything given for free is not valued. So, and especially at that level, see the
upper echelon of society can afford it. They Yes. will be happy to pay you, but that level will not be able to maybe afford it. But अगर वो फ्री में आप देंगे उसका कोई importance नहीं रहेगा. So that's nice. That's really nice. और मैम आप दो बेटों की माँ हैं, right? So what have how would you describe them? वो लोग तो आपको रेगुलरली आप ये केसेस जरूर घर पे भी कभी कभी उनको बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ आज हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट. So what do your sons feel and how have they grown up? My elder son was born in 1992. Okay. In that year, my Viva will fix is be likely to going on. Okay. 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 In तो मुझे जैसे थीसिस का फाइनल स्टेज था, वाइवा की तैयारी करनी थी, तो वो बैठ के मुझे डिस्टर्ब करता था. तो लगता था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ उस समय अलाइव थी, वो मुझे बहुत हेल्प करी. 93 में मेरी डिग्री अवार्ड हुई जी. और उसके बाद 99 में मेरा सेकंड चाइल्ड 99 में हुआ. उस समय मदर इन लॉ जा चुकी थी दुनिया से, मैं अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड. तो छोटे को पालने में मुझे बहुत परेशानी हुई जी. उस समय. मैं हाँ बोलिए. जॉब में थी, तो हमारे हस्बैंड 9 मंथ्स की तो वो मिल गई. उसके बाद जाना है, जरूरी है, सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने वहां पे अपना क्लास फर्स्ट हाफ में मैनेज करवाया कि मैं शाम तक नहीं रुकूंगी. फर्स्ट हाफ में मैनेज करवाया और हस्बैंड ने अपना हाफ डे मतलब लीव विदाउट पे करके सेकंड हाफ का ऑफिस अटेंड किया. वाह. क्योंकि मैं मेड रखी थी. ट्रू सपोर्ट है ये. ट्रू सपोर्ट. एक मेल सर्वेंट था, एक मेड भी थी, लेकिन वो फेथ नहीं था कि पीछे से ये लोग इसको कैसे रखेंगे, इसलिए 2.5 years तक हम लोग का शेड्यूल यही रहा. और मैम लड़के जैसे बड़े हो गए, आपके टीनेजर्स हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं लड़के, तो उन लोग का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स गर्ल्स, देयर फ्रेंड्स, देयर कजन्स? उन लोग को आपने क्या चीजें सिखाई हैं जो आपके काम से you have learned through your work and interactions with the world as a psychologist, and how have you brought up your sons differently than the regular Indian boy is brought up? मेरा बड़ा लड़का वो बहुत ही मतलब कम बोलता है, थोड़ा सा ग्रेव है, लेकिन वो किसी के प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करता है. वो बोलता है मम्मी से मैं सीखा हूँ. उसके कोलिग कोई, वेदर इट इज दे आर फीमेल और मेल, कोई भी मेंटल स्ट्रेस में मेरी मम्मा से मिल लो, वो कईयों को लेके आता है काउंसलिंग करवाने. और छोटा तो अपनी काउंसलिंग, मम्मी तुम्हारी काउंसलिंग की जरूरत है मुझे. छोटा तो दिन भर में 10 बार अपना प्रॉब्लम शेयर करता है. और नाइस, वेरी नाइस. तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि मेरा पर्सनल थॉट ये है, मेरा भी एक बेटा है 21 साल का और बेटी 16 की है. मेरा पर्सनल थॉट ये है कि एज मदर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों को बड़े करने में ज्यादा है देन गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों को तो हम पूरी दुनिया ट्रेन कर रही है, ऐसा करो वैसा मत करो, बट लड़कों को क्या ट्रेन कर रहे हैं हम? टू डू द राइट थिंग and to think differently. That is, I think, critical as parents to boys. 3-4 साल पहले की बात बताती हूँ. मेरा बेटा बैंगलोर में पढ़ता था, बड़ा वाला. वो आया था तो कोई मतलब पड़ोस में जो मेड काम करती है, वो कचरा की पॉलिथीन हमारे गेट पे रख गए. तो ये बड़े गंदे ढंग से उसको मारते मारते ठीक कर दूंगा वाली बात बोली. तो मैं सिर पकड़ के बैठ गई कि ये तुम एक औरत से बात कर रहे हो तो क्या हो गया, मेरे घर के आगे क्यों रखा? हमने ना, जब तक उसके घर के ऑनर निकल के इसको बोले, मैं इससे लड़ पड़ी कि मैं आज से बात नहीं करूंगी. सो तुमको मैंने बचपन से क्या सिखाया? फीमेल का रेस्पेक्ट करना. 2 कजन है, उनको जी जान से मानता है, जी जान से उनका रेस्पेक्ट करना, उनके लिए वो करना. इसके कोलिग्स लड़कियां हैं, वो लोग भी बोलती है कि बहुत केयरिंग है, बहुत रेस्पेक्ट देता है. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मतलब थोड़ा सा दिल्ली का असर आ रहा है इस पे क्या. फिर मतलब उसको रियलाइज कराने के लिए मैं 1 हफ्ते तक उससे बात करना बंद करी. तो उसने रियलाइज किया कि नहीं मम्मी, मेरे से गलती हो गई, नहीं हो. तो मैं हमेशा इनको बोली कि चाहे फीमेल सामने वाले कितने भी गलत हो, रेस्पेक्ट नहीं छोड़ना.
लेकिन लीगल राइट्स मिल गए फीमेल को, चाहे वो गलत भी है, आप अगर एक वर्ड गलत बोलते हो तो आप अंदर चले जाओ। तो एक उस इससे नहीं, मदर ने जो संस्कार दिया है कि हाँ फीमेल का रिस्पेक्ट करना है, तो अभी तक तो मेंटेन करें, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ठीक बात बोले आप। ये भी सही बात है। मैम एक बात बताइए, जैसे अगर किसी लेडी को फाइल करना है कंप्लेंट, और मान लीजिए वो दिल्ली में नहीं है, आपसे नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं, तो किससे कहाँ जाके उनको फाइल करना चाहिए कंप्लेंट, और कंप्लेन के क्या लिए लेवल, जस्ट अ मिनट, हाँ, कहाँ फाइल करना चाहिए, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कंप्लेंट्स, लाइक कभी कभी होता है ना स्टेजेस ऑफ कंप्लेंट, लाइक फर्स्ट यू हैव टू गो टू एक्स प्लेस एंड देन वाई प्लेस, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। फीमेल्स को राइट मिला हुआ है जहां भी है। नंबर वन, अगर सपोज करो मेरे ससुराल मेरे साथ वायलेंस की और मैं घर छोड़ के चली गई, किसी थर्ड जगह पे अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं गई या पेरेंट्स के पास गई, तो फीमेल्स को 0 FIR कराने का राइट है। वो जहां भी सेफ प्लेस पे 0 FIR वो वहां पे करा सकती है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है, अगर ठीक है आप साथ रह रहे हो, वायलेंस आपके साथ हो रहा है या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप नियर बाई, आपके नियर बाई महिला पुलिस थाना होता है। ठीक है, कमिश्नर ऑफिस में, दिल्ली में तो हर एरिया के कमिश्नर ऑफिस में महिला पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे आप कंप्लेन करा सकते हो। क्योंकि जनरली पुलिस स्टेशन में वैसे जाओ तो पुलिस वाले लोग का एटीट्यूड भी वही रहता है कि अरे ये तो घर की लड़ाई है, जहाँ बैठ के शांति से सुलझाना। लेकिन महिला थाना जो बना है, हर पुलिस, दिल्ली के हर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में महिला थाना, तो वहां पे ये कंप्लेन रजिस्टर करा सकती हैं। वहां पे पहले सिटिंग, मतलब उसके जो भी अपोजिशन पार्टी है उसको बुला के पहले ये लोग स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग देते हैं विथ लीगल नोट्स कि आपके साथ ये कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हो। ठीक है, अगर लड़की फीमेल चाहती है कि हाँ काउंसलिंग की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है कि पहले अगर हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट है या फादर एंड डॉटर के बीच डिस्प्यूट, तो पहले जोड़ने की कोशिश की जाए। करेक्ट। अगर बट मैम एक बात बताइए, महिला थाना, हम लोग सब कॉमन मैन के लिए महिला, कुछ भी पुलिस, अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में वी डोंट लुक एट द पुलिस एज अ रिलीविंग फैक्टर, वी लुक एट देम एज अ फियर, लाइक देयर इज अ फियर इन अस कि पुलिस अगर गाड़ी के सामने आ गई जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। You understand? So, does the Mahila Thana actually work? Do they yes, do they listen to people? yes, in 90% cases, in Okay. 90%. Yeah, that's fine. 90% is good enough. And ma'am, ये महिला थाना सिर्फ मेट्रो सिटीज में है कि छोटे सिटीज एंड टाउन्स में भी है? छोटे सिटीज में भी हैं, छोटे सिटीज में भी थी, लेकिन छोटे सिटीज में होता है ना कि एक ही जैसे SP ऑफिस है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस होता है अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो उस हेडक्वार्टर में ही एक महिला थाना होगा, वहां पे वो एप्लीकेशन भेज सकती है। जैसे कस्बा वाइज नहीं होता है, तो एक यूनिट बना होता है कि हाँ ये महिलाओं का प्रॉब्लम है तो इसको हेडक्वार्टर भेजा जाए, ऐसे होता है। तो एक तो महिला थाना की बात हो गई, ठीक है। सेकंड है, हर स्टेट में स्टेट वुमेन कमीशन, हर स्टेट में स्टेट वुमेन कमीशन। अगर पुलिस सपोज कीजिए महिला थाना नहीं गए, इंस्टेंटली आप 100 नंबर पर कॉल किया, केस रजिस्टर किया या कंप्लेन रजिस्टर किया, FIR नहीं कर रही है पुलिस या आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप स्टेट कमीशन, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली वुमेन कमीशन है या नेशनल वुमेन कमीशन है, वहां पे आप पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा। पुलिस के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं महिला थाना जाऊं और वो मेरी बात ना सुने या वो मेरे रिक्वेस्ट को गलत से पोर्ट्रे करें, they give a false complaint in the register, then I have the right to go to the National Commission of Women or the Delhi Commission of Women. Delhi Commission for Women. Other than Delhi, in every state there is state commission for women. Okay? State commission also. Okay. Interesting. Okay. So I have done one thing. I have requested Women with Wings to put it down in our comment box so that people can read and know that DCW and NCW and Mahila Police Station is available for legal aid. Yes.
And No, legal aid के लिए- legal aid is that is different thing. अगर देख कोई कोर्ट में केस करना चाहता है, जैसे मेंटेनेंस का हो गया, या जी। कंजुअल राइट्स सेक्शन 9 हो गया, कि ससुराल वाले निकाल दिए घर से, हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, हिंदू लॉ मैरिज एक्ट के कंजुअल राइट्स में सेक्शन 9 लगता है, तो वो कोर्ट में डाल सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने का अधिकार चाहती हूँ, ठीक है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, कोई छोटी मोटी लड़ाई से या ईगो के चलते वो उनको घर से निकाला गया, या वाइफ छोड़ के चली गई है, तो हस्बैंड भी सेक्शन 9 कर सकता है। तो ऐसे केस में जो Restitution of conjugal rights is the name of the section, right? तो इसके लिए या मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं दे रहा, वाइफ कहीं और रह रही है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो मेंटेनेंस तो लीगल एड के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर जगह, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको मिल जाएगा। डालसा उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, डालसा, DALSA ऑब्लिक सालसा कर देना, सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज। और दिल्ली में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर कोर्ट में डालसा का ऑफिस है, वहाँ रिटायर्ड जज जो होते हैं, जस्टिस, वो उसके सेक्रेटरी होते हैं। आप वहाँ पे एक आईडी प्रूफ एंड रेसिडेंस प्रूफ लेके जाइए, रेसिडेंस प्रूफ नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट लेके जाइए, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपका केस लड़ेगा। अच्छा, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें एक फीस नहीं लगता है, बस पैसे क्या लगते हैं, जो आप पेपर टाइपिंग कराते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, नॉमिनल चार्जेस। जी मैम, एक बात बताइए, suppose there is a question from one of the audience, Jalpa Kansara. She has asked that during such complaints, is there any provision for safety of those women who file the complaint? Yes, if she has apprehensions of life, कि मैंने कंप्लेन किया है, अब मेरे पे अटैक हो सकता है या लाइफ थ्रेट है, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दे सकती है कि ऐसे ऐसे मतलब मैंने कंप्लेन किया है और मुझे अपना लाइफ थ्रेट है, मेरे को खतरा है, तो मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इनका फोन नंबर लेगा, अपना एक जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा उसका फोन नंबर एक्सचेंज कराएगा, और विद इन नो टाइम, अगर ये फोन करते विद इन नो टाइम वो उनके हेल्प के लिए पहुंचेगा। मैम, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ मिलता है? लाइक वेयर कैन आई गो मीट इन द पुलिस स्टेशन? ओके। और दिन में एक बार वो ऑफिसर जाके चक्कर लगा के कि आप ठीक हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं, ये उनको। ओके मैम, एक बात बताइए, आपने बहुत तरह के विमेन के साथ बात किया है, काम किया है, मिलते रहते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? There's a question from Anupam Singh on the chat, and she says, what do you think sets a strong woman apart from others? What are the characteristic features that you would say a strong woman has? Characteristics, one thing is outspoken with honesty. Okay, so somebody who can be who can voice her whatever she wants to say. Yeah, with honesty. वो मैनिपुलेटिव बहुत फेमस होती है, मैनिपुलेटिव, छोटे से प्रॉब्लम को ऐसे किया, जब मैं बहुत झेल चुकी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत झेल चुकी हूँ, बहुत ह्यूमिलेशन भी हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऑनेस्टी से आप अपनी बात रखने की हिम्मत रखिए। और दूसरी चीज है, स्ट्रांगनेस तब आएगा, दूसरा पॉइंट है कि पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप अंदर से कितने सही हो, कहीं आपके बिहेवियर में या आपके डीलिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। पहले आप अपने आप को देखोगे, उसके बाद आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हो कि हाँ ये सामने वाला गलत। तो वो कॉन्फिडेंस, जब अपनी गलती देखने की कॉन्फिडेंस आ जाएगी ना, तो उससे ज्यादा स्ट्रांग वुमेन। Yes, you're absolutely right. I think that makes a lot of sense. In fact, working in the corporate for so many years, the fun part is this, that when a man comes and says, मुझे ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मान लीजिए इंटरव्यू ले रही हूँ, तब हमें लगता है कि wow, he's a very driven man and he's very, very assertive and he knows what he wants. That's why he's asking for it. But in the same place, when there is a woman being interviewed and the woman is
assertive about stuff that, oh, I will not reduce my expectations of compensation beyond this. I will not, I will work between these hours, etc., etc. So automatically जो इंटरव्यूइंग साइड में होता निकलता है है बहुत नक चढ़ी है, बहुत नक चढ़ी है. यस, दैट्स इट. तो एचआर में रह के इट इज इंटरेस्टिंग, और मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज माई पीपल, आई स्टडी अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई वंडर एंड वॉच कि आदमी के लिए रूल अलग है, कि हम बोलते हैं कि ओके ही इज very good with work and he will be a great sales guy, but when a woman does that, then it becomes ulta, ki she's, you know, very aggressive. But it is not about aggression, it is about knowing what she wants and standing up for what she wants. yes, yeah na? yes, very true. सही बात. एक्चुअल मैंने बोला ना कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी रही है इंडिया में, तो अब तो ठीक है मेल भी एक्सेप्ट करने लगे हैं इक्वालिटी की बात, लेकिन वो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम फीमेल्स को भी हिट करती है. हम ही इंटरव्यू ले रहे हैं, हम ही बोलेंगे कह रही है तो बहुत नक्सड़ी है, बहुत एटीट्यूड वाली, हमारे दिमाग में ही पता. So that is the whole purpose, ma'am. Women with Wings also has come together so that we do not compete with each other. We actually work to collaborate and be with each other and hold each other together and then strengthen ourselves and fly. Because jo strength group mein hai, that strength cannot come from one person. I don't know everything. I can ask you 10 questions and get 10 questions answered. I can ask another girl, another woman 10 questions and get answered and helped. But the fact that we constantly try to show another person down is what is the sad part. Where, and which is the reason why women have always had to deal with a lot more than plain and simple. क्योंकि अगर 10 का ग्रुप है उसमें एक बंदा अपॉर्चुनिस्टिक निकल जाता है, तो ये 9 की मतलब जो किया कराई यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है. और जो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब जैसे 10 में एक सेल्फ सेंटर्ड तो निकलते ही हैं. इसलिए ये फीमेल्स को ये एटीट्यूड छोड़ के कि हाँ फीमेल्स के राइट और क्या है, आप इक्वलिटी के साथ मेल फीमेल काम करें. एक इक्वलिटी एक माइंड में ये कि मैं फीमेल हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, वो मेल है तो नहीं मिलना चाहिए. और एक ऑनेस्टी, इंट्रोस्पेक्ट करने की बात जो मैंने बोली, हर फीमेल को सोचना चाहिए, अपने अंदर झांको. आज आपने जो दिन भर किया है उसमें सोचो कि आज दिन में आपने अगर 10 काम किया उसमें कितना सही किया है, उससे आपको क्या फायदा हुआ, दूसरे को क्या नुकसान हुआ. अगर ये चीज सोचेंगे ना तो वो जो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है वो आने से रुकेगा. राइट, ट्रू. मैम, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. Women with Wings is working really hard to bring women together. I want one thing for you to tell us. What is your commitment to Women with Wings? What do you think you can do to be a part of Women with Wings? मैं वुमेन विथ विंग्स की पार्ट अब बन गई हूँ, अब अलग से तो पार्ट बनने की जरूरत नहीं है. Of course, of course, of course. और मेरा एक्सपीरियंस जब भी मतलब वुमेन विथ विंग्स को जरूरत हो, मैं उनको हेल्प करने, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए तैयार हूँ. Thank you so much. Thank you so much. This is beautiful. And I think साथ साथ रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, all of us. Ma'am, Dr. Neeru Singh, I would like to thank you on behalf of the entire audience today and Women with Wings. The brilliant conversation. I think बहुत चीजें हम लोग को सुनने को मिली जो हमें पता नहीं था. जो I have been a crusader for a lot of things, but even I didn't know about Dalsa, Salsa, legal aid for free. I didn't know about it. I didn't know about the protection officer concept. So I've learned a lot, and thank you so much. Thank you. I would like to conclude today's session with real mixed feelings, because while I'm really sad to know of such heinous crimes that are happening to co-women in our country, and जब हम, मैंने जैसे कहा 21st century में बैठ के भी ये सब हो रहा है, but at the same time I think
I'm also happy. It is mixed feelings, as I said. I'm riding a high wave, one where I'm used to seeing people having trouble, girls having trouble, but I'm Yes. also very, very happy that the world will surely be a better place with golden hearts like you, ma'am. आप जैसे लोग होंगे, बहुत फर्क होगा, and good things will happen. So thank you for the from the bottom of my heart for making You are such a always difference. welcome. Yeah, thank you for making such a difference to the lives of many women relentlessly and every day. तो मेरे को एक छोटी सी कोट याद आ रही है जो कन्फ्यूशियस ने कहा था many years ago that our greatest glory is not in ever failing but in rising each time that we fall. Yes. So let this be a step to drive the change that we wish to see. Thank you, ma'am. And thanks to all the audience. Lovely, lovely Welcome. hearing your questions and being there. Right. Thank you. Bye. Thank you. Good night and have a good evening. Bye bye.